Hello students, in the previous video I have completed my topic the resistances in combination, and in that very particular topic I have completed two parts or two subtopics: law of resistances in series and law of resistances in parallel. And remember this thing, that in case of series combination the total resistance always is more than the individual resistances, while in case of the parallel combination the total resistance is always less than the individual resistances. And today I am going to take one more topic from the chapter electricity, that is chapter is the heating effect of electric current. Now before to start with this chapter, I would like to go to another title, that is the effect of electric current. First of all, I am going to take the topic effect of electric करंट. ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हीटिंग इफेक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि लाइट कितनी तरह के इफ़ेक्ट पैदा करती है. सो व्हेन एवर लाइट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, अब कंडक्टर कोई भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है. इलेक्ट्रोलाइट मीन लिक्विड भी हो सकता है जिसमें से करंट पास हो जाए. इट कॉजेज थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, that is the first one is called the chemical effect of electric current, and this effect we have completed in a chapter, and the chapter is, that is our chemistry topic. It is the acid, base and salt. Yeah, in a chapter, that is the first chapter of chemistry, the chemical reactions. And second effect is the heating effect. And this type of the effect now we are going to study. And the third one is magnetic effect of current. This effect we will study in our next chapter, and the next chapter is the magnetic effect of electric current. It is the name of the chapter, and this one chapter is the next chapter in our physics portion. So this we have completed, this we are going to complete, and this we have to study in the next chapter, that is the magnetic effect of current, electricity. Now here the term comes in the heating effect of electric current. अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ तो जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास की जाती है तो उसका कोई एक पार्ट
या होल ऑफ द कंडक्टर, या पूरे का पूरा कंडक्टर हीट अप होता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। से whenever current is passed through a conductor, then a part of conductor or whole of the conductor get heated. This effect of current is called heating effect. On this particular effect, that is the heating effect, a large number of electrical appliances which we use in our homes works, and the simplest are, in our homes we use geyser, we use electric iron, in some houses we use heater, even the fan, it get heated when it regularly runs, the electric bulb, ये सारी चीज़ें जो हैं इसी इफेक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वायर में से करंट फ्लो करता है, उस करंट के कारण इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो भी फिलामेंट लगा हुआ इट ग्लोज, and within a very short time the outer body of the bulb get heated, mean heat is produced. Even in the wires, when current is passed the wire get heated. इसी के ऊपर बेस्ड हमारे घरों के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस यूज़ किया जाता है, एंड द डिवाइस इज कॉल्ड सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज क्या है कि पहले लोग घरों में जब भी इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाई जाती थी तो उसमें दो तरह की वायर्स इस्तेमाल होती हैं। वन वायर इज कॉल्ड लिव वायर एंड सेकंड इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर। जो लिव वायर होती है उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो रेड कलर का होता है, और जो न्यूट्रल वायर है उसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो ब्लैक कलर का है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मोर वायर टू विच यू कॉल एज अर्थ वायर। इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है इट इज़ ऑफ ग्रीन कलर। तो सेफ्टी फ्यूज जो है हमेशा लिव वायर के साथ जोड़ा जाता है, इट इज़ नेवर कनेक्टेड विद न्यूट्रल वायर। सो जब भी कभी हैवी करंट पास करता है, कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, कभी वोल्टेज बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, उसके कारण वायरिंग में से जब भी कभी हैवी करंट पास होता है तो ये सेफ्टी फ्यूज़ हमारे घर के पूरे अप्लायंसेस जो चल रहे होते हैं उनको सेव करता है। इसलिए इसका नाम सेफ्टी फ्यूज़ रखा गया है कि जब भी वायर में से करंट पास होगा मोर देन द कैपेसिटी, क्योंकि हर वायर की एक रेटिंग होती है कि इट अलाउज सर्टन अमाउंट ऑफ करंट टू पास थ्रू इट, एंड व्हेन करंट ऑफ मोर कैपेसिटी passes through the wires get heated, due to which a large amount of the current passes। कई बार ऐसा भी होता है कि जो इनके ऊपर इंसुलेशन होती है वायर्स के ऊपर वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने से क्या होता है, जो लिव वायर और न्यूट्रल वायर हैं वो आपस में टच कर जाती है। तो टच करने से अ हैवी करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट,
that causes the firing in the electric circuit. तो इस चीज़ से बचाने के लिए अगर लिव वायर के साथ सेफ्टी फ्यूज़ लगा होगा तो वो सेफ्टी फ्यूज़ के अंदर एक थिन वायर लगी होती है। जैसे ही हैवी करंट मोर देन द कैपेसिटी पासेस थ्रू इट मेल्ट्स। ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होने से ये सर्किट टूट जाता है, जो करंट है इसके आगे फ्लो नहीं करती और उसका रिज़ल्ट क्या है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो वर्क कर रहे हैं या चल रहे हैं, रनिंग पोजीशन में हैं, वो सारे के सारे सेव हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया। आजकल आम घरों में सेफ्टी फ्यूज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पे हम एक और चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, टू विच वी कॉल एज MCB। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आजकल हैवी करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हर घर के अंदर मेन बॉक्स में, इवन इन द रूम्स आल्सो हैविंग अ सेपरेट सर्किट्स, MCBs आर यूज्ड। तो जिस भी कमरे में कोई प्रॉब्लम होगी उसका MCB जो है वो ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करने का मतलब है लाइट अपने आप ऑफ हो जाती है और जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे डैमेज होने से बच जाते हैं। इसलिए इसका नाम सेफ्टी फ्यूज़ है। ये भी हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। इसका काम भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाना है। दस इट सेव्स शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जाएंगे। तो हमें एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड when a current is passed through a conductor। ये क्वेश्चन फॉर्म में भी है या इसका नाम ये भी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीनिंग इज अगेन सेम। वहाँ हमने सिंपल मीनिंग बताया, यहाँ हम वैल्यू निकालेंगे जो हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, लेट अस सपोज अ कंडक्टर, let V be the potential difference in moving a charge Q from one point to other point, I be the current passing through the conductor। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी जिस दिन चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड वीडियो में, द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वर्क डन मीन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज मूव्ड। वर्क डन था W, चार्ज था Q, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर W इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज।
तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं W की. W इक्वल टू V इंटू Q. से दिस इज नंबर 1. Also we know that electric current is equal to Q upon T. That is the rate of flow of charge through a conductor is called electric current. यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो Q की. Q is IT, ये नंबर 2. एंड नंबर 3 फ्रॉम ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. दैट इज V इक्वल्स टू IR. ये भी हमने एक्सप्रेशन प्रूव किया था. 2 और 3 से Q और V की वैल्यू लेके हमने नंबर 1 में पुट करनी है. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V एंड Q इन इक्वेशन. तो W कम्स आउट टू बी. V की वैल्यू है हमारे पास IR, Q की वैल्यू है IT. इट कम्स आउट I इंटू I स्क्वेयर, देन R इंटू T, or you can say I square R T. It is W. This much is the work done. अब ये वर्क डन करता क्या है? This work done is stored in the form of heat. ये हीट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो हीट मीन्स H. तो W की जगह लिखते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वेयर R इंटू T. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है. दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड जॉल्स लॉ ऑफ. इस लॉ की डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में आएंगी. दैट इज आफ्टर 10th. सो दिस लॉ इज मीन H इक्वल्स टू I स्क्वेयर RT इज कॉल्ड जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग. यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है, और वो क्या है कि सिंस H इक्वल्स टू I स्क्वेयर RT, इसका मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. दूसरा H इज प्रोपोर्शनल टू R, और तीसरा H इज प्रोपोर्शनल टू T. मतलब कि जितनी ज़्यादा करंट पास होगी उतनी हीट ज़्यादा पैदा होगी. दैट इज ग्रेटर द अमाउंट ऑफ करंट, passing through the conductor, more will be heat produced. जितनी ज़्यादा करंट पास करेंगे उतनी हीट ज़्यादा पैदा होगी. और इसका मतलब जितनी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, greater the resistance of a conductor, greater will be the heat produced. Or third point, H is proportional to T, that is the heat produced in a conductor will be more if
current is passed through the conductor for more time. जितनी ज़्यादा देर के लिए करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।